Good morning, student. Welcome back in your EVS class. In previous class, we have started movement in animals, and this is your second class of lesson 6 movement in animals. So I have named it movement in animals part 2. So let's start. The first point is, how do insects look like? Body of an insect is divided into three parts. Body of insects divided into three parts: head, thorax, abdomen. It has three pairs of legs. Some insects have wings. Some insects have wings. Winged insect can fly as well as crawl. Winged insect means what? वैसे इंसेक्ट जिनके पास पंख होते हैं उनको विंग्ड इंसेक्ट बोलते हैं. तो विंग्ड इंसेक्ट कैन फ्लाई एज वेल एज क्रॉल. क्रॉल यानी कि वो ज़मीन पे चल भी सकते हैं घसीटते हुए रूप में. तो लेट्स सी नेक्स्ट. इंसेक्ट दैट डू नॉट हैव विंग्स कैन क्रॉल ओनली. जिस इंसेक्ट के पास विंग्स नहीं होते हैं वो ओनली क्रॉल. दे कैन ओनली क्रॉल. इंसेक्ट लाइक बीटल्स, flies, ant, bees, wasps, moths and butterflies are commonly seen around us. Some of them are useful but most of them harm us in different ways. Most of insects are helpful for us and many of them are harmful to us in different ways. Let's see how insect look like. In this picture you can see insect. The part of insect, first one is antenna. Antenna is useful in insect. It is just like sense organ of insect. Next one is head. Next wing. Wing help insect to fly. Thorax, abdomen and legs. These are the main parts of insect: antenna, head, wing, thorax, abdomen and legs. Abdomen means peट and thorax means chest. Clear? So how many parts of insect? Antenna, head, wing, thorax, abdomen and leg. The insect had mainly 6 parts. Next, useful insects. We got honey and beeswax from the hive of honeybees. Honeybees, you can see here. You can see here honeybees. So we can get honey from honeybees and bee wax from hive of honeybees. Honeybees feed on the nectar of flowers and make honey from it. हनी कैसे बनता है? हनी बीज जो है वो फ्लावर से नेक्टर्स को चूस लेते हैं और उससे हनी बनाते हैं. दे लिव इन कॉलोनीज इन दियर स्पेशली डिजाइंड हनी कॉम्ब. हनी कॉम्ब जो बनाते हैं वो लोग जो हेक्सा डायगोनल सेल्स में होते हैं उसमें वो जो छोटे छोटे छेद होते हैं वैसे उसी कॉलोनी में सारे मधुमक्खियाँ रहती है. नेक्स्ट, second one is silkworm. Silkworm provide us with soft and silky fiber which are useful to make silk cloth. We can get silk cloth from silkworms. The worms lay eggs that hatch into caterpillars. Each caterpillar develop into pupa which covers itself with silk fiber. This is called cocoon. This is called cocoon. Silk thread are obtained by अनवाइंडिंग द कोकोन. तो जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं जैसे उनको कैटरपिलर्स बोलते हैं. तो कैटरपिलर्स जिस कोकोन में होते हैं उसी कोकोन से सिल्क बनता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट. बटरफ्लाइज. बटरफ्लाइज एंड ए नंबर ऑफ अदर इंसेक्ट हेल्प इन कैरिंग पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर प्लांट्स. पोलन मीन्स व्हाट? How is butterflies help us? So butterflies help in carrying pollen from one flower to another in plants. Insects are food to many animals like a spider, lizard, frog and birds. Insects जो हैं बहुत सारे एनिमल्स के फूड भी होते हैं जैसे स्पाइडर, लिजार्ड, फ्रॉग्स एंड बर्ड्स यूज टू ईट इंसेक्ट्स. नेक्स्ट, नाउ वी विल टॉक अबाउट हार्मफुल इंसेक्ट. Many insects like mosquito, lice and bed bugs are blood suckers. These insects are blood suckers. ये insect जो हैं वो खून चूसते हैं. They suck our blood and also spread a number of disease. वो हमारे ब्लड को तो चूसते ही हैं साथ में बहुत सारे डिजीज़ भी हमको फैलाते हैं जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया
एंड ब्रेन फीवर आर सम ऑफ द डिजीज कॉज्ड बाई मॉस्किटो बाइट। मच्छर के काटने से कौन कौन से बीमारी होते हैं हम लोग को? मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया एंड ब्रेन फीवर। ओके, नेक्स्ट, इंसेक्ट्स स्पॉयल आवर थिंग्स। इंसेक्ट्स जो है वो हमारे सामान को, थिंग्स को स्पॉयल भी करते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट फीड ऑन क्रॉप्स एंड डैमेज देम। लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स, बहुत सारे जो इंसेक्ट होते हैं वो हमारे क्रॉप्स को डैमेज कर देते हैं। मैनी इंसेक्ट्स लाइक वेविल्स ईट ग्रेन्स स्टोर्ड इन द किचन एंड ग्रैनरीज एंड कॉज ह्यूज लॉसेस। वेविल्स जो है वो हमारे घर में जो ग्रेन्स रखे होते हैं उसको वो खा जाती है, बर्बाद कर देती है। नेक्स्ट, इंसेक्ट लाइक सिल्वर फिश एंड टर्माइट्स ईट्स पेपर एंड वुडन आर्टिकल्स। इंसेक्ट लाइक सिल्वर फिश एंड टर्माइट्स। सिल्वर फिश और टर्माइट क्या करते हैं? पेपर को खा जाते हैं या फिर जो वुडन आर्टिकल, लकड़ी का बना हुआ सामान है, उसको खा जाते हैं। हाउस फ्लाइज सिट ऑन द फूड एंड स्प्रेड जर्म्स दैट कॉज डिजीज। हाउस फ्लाइज यानी मक्खी जो है हमारे खाने पे बैठती है और जर्म्स को फैलाती है, जिससे कौन कौन सी बीमारी होते हैं? सी, कॉलेरा एंड डिसेंट्री। कॉलेरा एंड डिसेंट्री किसके वजह से होती है? हाउस फ्लाइज के कारण। कॉकरोच आर एक्टिव एट नाइट। कॉकरोच जो है वो रात के समय में एक्टिव होते हैं। दे फीड ऑन लेफ्ट ओवर फूड एंड स्पॉयल थिंग्स इन किचन। कॉकरोच क्या करते हैं? जो हमारे बचे हुए खाने होते हैं उसको खाते हैं और हमारे किचन में पड़े सामानों को भी स्पॉयल करते हैं। इंसेक्ट्स दैट बाइट। कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जो हम लोग को काटते भी हैं। अपार्ट फ्रॉम मॉस्किटो, मॉस्किटो के अलावा देयर आर अदर इंसेक्ट दैट बाइट अस एंड कॉज ए लॉट ऑफ पेन। अदर इंसेक्ट दैट बाइट अस एंड कॉज ऑफ लॉट ऑफ पेन्स, यानी बहुत सारे इंसेक्ट्स हमको काटते हैं जिससे बहुत पेन भी होता है। लाइक वास्प एंड हनी बीज आर सम ऑफ देम। वास्प एंड हनी बीज जो हैं वो जब हमें काटते हैं तो बहुत दर्द भी होता है। हनी बीज मीन्स व्हाट? मधुमक्खी। एंड वास्प, व्हाट इज वास्प? एनी आंसर? ओके, लेट मी एक्सप्लेन। जो हम लोग देखे होंगे हमेशा से अपने आसपास में हड्डा, उस हड्डे को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वास्प। तो वास्प एंड हनी बीज आर सम ऑफ देम। ओके, नेक्स्ट, लेट्स रिवाइज। नंबर ऑफ legs in different animals. Human beings have 2, cows and horses have 4, insect have 6, a spider have 8 and caterpillars has many. सो अलग अलग एनिमल में नंबर ऑफ लेग्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। लाइक ह्यूमन में 2, काउज एंड हॉर्सेज हैव 4, insects have 6, a spider have 8 legs and caterpillars have many legs. Next, animals move in different style. Animals move in different style. They walk, run, hop, jump, crawl, creep, swim or fly. Okay, next, sick animals hide themselves to rest undisturbed. जो sick animals होते हैं वो अपने आप को छिपा लेते हैं रेस्ट करने के लिए ताकि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। नेक्स्ट, बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। मेनली बॉडी ऑफ इंसेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हेड, थ्रोक्स एंड एब्डोमेन. It has 3 pairs of legs. 3 pairs of legs means what? 6 legs. Next, number 5. Honeybees, silkworms and butterflies are useful insects. Some insects are useful and many insects are not useful to us. So, honeybees, silkworm and butterflies are useful insects. Insects like mosquito, houseflies, lice, bedbugs and weevils are harmful to us. These insects are harmful to us. Next, bites of insect like mosquito, wasp and honeybees cause a lot of pain. Bites of insect यानी कुछ इंसेक्ट जो काटते हैं, like mosquito, wasp, honeybees cause a lot of pain. इन सारे इंसेक्ट्स के काटने से बहुत सारा पेन होता है. तो that's end of lesson 6, movement in animals. So in next class we will start a new chapter. Thanks.